जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Hello everyone, my name is Ashish Rajbandhu and we are going to discuss about the important provisions of the BNS. In this class, we will discuss which is one of the very important topic, that is right of private defense. And we will also discuss where there is any changement between the IPC and BNS. If there, we will discuss that. First of all, why we are picking this topic, that right of private defense, because it is very important for the exam point of view, whether it is related to the judicial service examination or prosecution officer examination. It is very important. It is quite sure that you will get a question, not only one question, at least 2 or 3 questions from in the prelims examination. Basically, they will ask directly the number of sections, or they will ask the case laws related to the right of private defense. So in this class, we are going to do the comparative analysis between the provision of IPC and BNS respect of the right of private defense. We will discuss how to memorize the section, because it is quite often कि बच्चे भूल जाते हैं number of sections. Okay, so we are going to discuss about the number of sections, how to memorize that section, and also we will discuss all the important cases जो है वो जो बार बार आपके एग्जाम में, जुडिशियल सर्विस एग्जाम में आते हैं. तो we are going to discuss about the right of private defense. What is the right of private defense? That is very important. The right of private defense. Sir, what is the right of private defense and why it is mentioned in the chapter that is known as general exception? Look, the entire BNS, earlier it was IPC, the entire IPC or BNS provides the punishment. This particular chapter, which is chapter 3, provides the immunity. अगर आपका मैटर चैप्टर 3 में फॉल कर गया BNS के, तो इसका मतलब आपको रिलीफ मिलेगी. ठीक है ना, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा. इसीलिए ये चैप्टर एक्सेप्शन है और जो बाकी है वो जनरल के अंतर्गत आ रहे हैं. So sir, what is the right of private defense? If there are any changement, look, in your IPC, there was chapter 4 from section 96 to 106. There was total 10 sections. Okay. Now, in your BNS, there is also 10 sections. यानी कोई changement नहीं हुआ है. From section 34 to 44, there is 10 sections. तो basic changement हुआ, we will discuss that. There is 10 sections in your IPC. हमने इनको पिक किया और as it is bulk में शिफ्ट कर दिया चैप्टर 3 में, which is known as general exception from 34 to 44. तो जो प्रोविजन 96 to 106 थे, सेम प्रोविजन हमने पिक किया और हमने कहां पर फिट कर दिया कि 34 to 44. So now in this class we are going to discuss about the section 34 to 44 of the BNS and cases related to the section 34 to 44 also. ठीक है, तो जो section 96 to 106 there was a 10 sections और यहां भी कितने हैं 10 sections. तो हमें 34 to 44 पढ़ने. This is the arrangement of the statute, यानी these are the number of sections which is related to the right of private defense. Sir, what is the right of private defense and what is the importance of the right of private defense? Why? What is the reason that it is there? Number 1, बेंथम ने एक बुक लिखी. बेंथम की बुक बहुत फेमस है, प्रिंसिपल ऑफ पेनल लॉज करके एक बुक है बेंथम की. अक्सर एग्जाम में आपकी ये पूछी जाती है. तो प्रिंसिपल ऑफ पेनल लॉज जो बेंथम की बुक है, ठीक है ना, तो एक बेंथम ने एक बुक लिखी. सबसे पहले हम यहीं से रेफरेंस ले रहे हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, बेंथम ने एक बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ पेनल लॉज. इस बुक में उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ पेनल लॉज, इस बुक में इन्होंने बहुत डिटेल में इंपॉर्टेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बताया. पहली बात तो समझो कि सेल्फ हेल्प इज द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ. पहली बात तो बेंथम ने ये बुक लिखी और इस बुक में उन्होंने बोला कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. तो बेंथम कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के रिगार्डिंग कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज द एब्सोल्यूट नेसेसरी.
उन्होंने एक बात और कही, जैसे लाइक देयर इज अ टू पर्सन, हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर स्टार्टेड फाइटिंग इन अ क्लोज रूम, एक बंद रूम है, वहां लड़ना शुरू कर दें, कोई मजिस्ट्रेट, कोई पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर सकती है अगर एक एग्रेसर बन जाए दूसरे के अगेंस्ट? नो वन कैन। बट तो जरूरी यहां पर यह है कि उस सिचुएशन में उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हम प्रोवाइड करें। वी मस्ट प्रोवाइड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप इस बात को समझो कि बेंथम ने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पेनल लॉज, और उस बुक में बेंथम ने इंपॉर्टेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे जोर दिया। बेंथम कहते हैं द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज द एब्सोल्यूट नेसेसरी। व्हाई? There is a reason behind it. उन्होंने कहा कि the vigilance of magistrate can never make up the vigilance for the each and every condition, every individual. ठीक है ना? तो उन्होंने एक बात और कही कि fear of law can never restrain a bad man. Fear of law किसी बुरे आदमी को नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, जब तक कि इंडिविजुअल के पास एक तरीके से कंप्लीट रेजिस्टेंस की पावर ना हो, ठीक है ना। और बेंथम ने कहा कि टेक अवे दिस पावर, ठीक है ना, it means you are accomplishing the bad man basically. So it is absolute necessary कि भाई साहब हर बंदे के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो। तो ये बात हमने यहां से पिक करी बेंथम की बुक प्रिंसिपल ऑफ पेनल लॉज जो बेंथम ने लिखी, और उन्होंने इस बुक में पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे बड़ा जोर दिया। अब अगर हम इस इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहली बात तो ये है कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इज द फर्स्ट रूल, बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और एक बात को समझो, ये तो हमारे और आपकी बात हो गई, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो हमारे और आपके लिए है ना। दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, वेदर इट इज द म्युनिसिपल लॉ, वेदर इट इज द इंटरनेशनल लॉ, ये पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज है। अगर आप यूनाइटेड नेशन चार्टर का, यूएन चार्टर का, अगर आप आर्टिकल 51 देखेंगे, अगर यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 देखेंगे इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल 51 जो है प्यारे बच्चे, ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस इज एन इनहेरेंट एंड रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट ऑफ द स्टेट्स। मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगर हम बीएनएस की बात करें फ्रॉम सेक्शन 34 टू 44, अर्लियर इट वाज आईपीसी फ्रॉम 96 टू 106, हमारे आपके लिए तो है ही। यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 51 हमें ये बात बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है हर स्टेट के लिए है, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिव भी। इंडिविजुअली का मतलब अभी देखो यूक्रेन और रसिया लड़ रहे हैं, एक ने हमला किया, दूसरे ने अटैक शुरू कर दिया, कोई रोकने गया, बोला हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। और कलेक्टिव भी आपके पास राइट है, देखो नाटो एक ग्रुप है, वो मिलके लड़ता है ना, कि किसी एक पर अटैक माने सब पर अटैक, तो कलेक्टिव राइट भी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, और इंडिविजुअल राइट है। तो हम अगर बात करें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली फॉर द म्युनिसिपल लॉ बट आल्सो द इंटरनेशनल लॉ, वहां पर भी ये दिया हुआ है। हमने इस बात को समझा। तो प्यारे बच्चे, बीएनएस का जो चैप्टर 3 है वो फ्रॉम सेक्शन 34 टू 44 जो है, वो ये सेक्शंस हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रोवाइड कराते हैं, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड राइट, ठीक है ना। अब ये हमें आज पढ़ना है, ठीक है ना। कुछ बेसिक रूल्स हम इन सेक्शंस को पढ़ने के पहले अगर अपने दिमाग में बिठा लें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल बेसिकली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नंबर 1, तो पहली बात तो आपने ये याद रखना है, मैं पढ़ाऊंगा लेकिन पहली बात आपने ये याद रखना है, पहला रूल जो है आपका, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज फॉर द डिफेंस नॉट फॉर द एग्रेशन। पहली बात तो ये समझो कि आपके एग्रेशन के लिए नहीं है, आपके अटैक के लिए नहीं है, ठीक है ना, आपके डिफेंस के लिए है। तो मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहीं खत्म हो जाता है जहां पर आपका एक तरीके से रीजनेबल एप्रहेंशन खत्म हो जाता है। तो पहली बात तो ये रखना है कि नेवर बिकम द एग्रेसर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ओनली फॉर द डिफेंस रेदर देन एग्रेशन। ये पहला रूल अपने दिमाग में डालते चलो, अभी सेक्शन पे आएंगे अब, ठीक है ना। दूसरा रूल ये याद रखो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल फॉर योर ओन बॉडी एज वेल एज द बॉडी ऑफ others. Right of private defense available for your property or property of the others. ये दो बातें आपको याद रखनी है कि आपको कोई अटैक करे, you have right of private defense. अगर आपको कोई अटैक करे, you have right of private defense. अगर किसी और को भी कोई अटैक कर रहा है, then also you have right of private defense. बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि he must be your relative.
वो आपका रिश्तेदार हो, आपका जानने वाला हो, जरूरी नहीं है। सड़क में कोई किसी को पीट रहा है, यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है ना। व्हाई? बिकॉज इट मे बी यूज्ड इवन देयर इज अ रिस्क ऑफ इनोसेंट पर्सन, वो सेक्शन 44 हो गया, तो वहां पर भी आपका दिया हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो अगर हम अपने केसेस की बात करें तो सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते, बेंथम की तो बात हो गई, एक केस है मुंशीराम एंड अदर्स, मुंशीराम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये केस था, ठीक है ना, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो वी आर डिस्कसिंग बेसिकली द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस हेगड़े वॉज द जज, जस्टिस के एस हेगड़े, जस्टिस के एस हेगड़े वॉज द जज। जस्टिस हेगड़े ने एक बात कही कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सर्व्स अ सोशल पर्पस। बोला ये सोशल पर्पस क्यों? मैंने अभी बताया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल फॉर द इंडिविजुअल, फॉर योर ओन बॉडी और बॉडी ऑफ द अदर्स। तो उन्होंने कहा इट सर्व्स द सोशल पर्पस, ठीक है। ये बात जो है उन्होंने बोली, किसने बोली? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के रिगार्डिंग जस्टिस के एस हेगड़े ने। और उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, मैं बोल के जा रहा हूं, उन्होंने कहा देयर इज नथिंग मोर डिग्रेडिंग फॉर द ह्यूमन स्पिरिट टू रन अवे फ्रॉम द पेराइल। ह्यूमन स्पिरिट के लिए इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती, कोई मुसीबत से वो भाग रहा है। तो उन्होंने बोला इट सर्व द सोशल पर्पस, और इसको होना चाहिए। तो ये बात यहां से निकलकर हमारी आई। अब हमने कहा कि नेचर क्या है इसका, मैंने कहा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल फॉर द डिफेंस नॉट फॉर द एग्रेशन, ठीक है ना। तो दो बातें हमने बोला कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल फॉर द डिफेंस नॉट फॉर द एग्रेशन, और नंबर टू इट इज, इसको तो यहां प्रिंट कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि हर सेक्शन में इस बात को याद रखना, इट इज प्रिवेंटिव राइट नॉट अ प्यूनिटिव राइट। ये आपको किसी को पनिश करने के लिए नहीं है, ठीक है ना, ये सिर्फ प्रिवेंटिव राइट है, आपके अपने डिफेंस के लिए है। और ये बात बोली गई देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, बार बार ये केस पूछा जाएगा, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस बार बार पूछा जाएगा, प्राइवेट डिफेंस रिलेटेड है। देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में बोला है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज ओनली प्रिवेंटिव राइट नॉट अ प्यूनिटिव राइट। बिल्कुल जो है प्रिवेंटिव है, प्यूनिटिव तो है ही नहीं। मतलब आप सिर्फ उतने फोर्स को यूज करें जितने फोर्स से आप किसी को जो है रिस्ट्रेन कर सकते हैं, एक बात, ठीक है ना। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स होगा जो आप अपने दिमाग में रखना। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नंबर ऑफ सेक्शंस। सबसे पहले देखो, these are all the sections which is related to the right of private defense from 34 to 44। These are all the number of sections जो आपका एक तरीके से इसमें क्या है, रिलेटेड है, और इन्हीं को हमें देखना है। 34 to 44 हम इनको वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस सेक्शन इनटू द 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी में बांटेंगे? 3 कैटेगरीज। देखो इधर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके लिए? बॉडी और प्रॉपर्टी बोथ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल फॉर द बॉडी एंड प्रॉपर्टी बोथ। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल फॉर बॉडी एज वेल एज द प्रॉपर्टी। दोनों के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। किसके लिए है? बॉडी के लिए भी है और प्रॉपर्टी के लिए है। बॉडी और प्रॉपर्टी किसकी? आपकी अपनी खुद की बॉडी और अदर्स की बॉडी, ठीक है ना। आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी और अदर्स की प्रॉपर्टी, दोनों के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। तो ये बात तो हमने सीखा। तो एक बात, प्रॉपर्टी सर कौन सी? बोथ। बोथ मींस मूवेबल, इमूवेबल, मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ। तो हमें दो बातें भी पॉइंट कर रहा है, याद में रखते हुए चलना है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल, ठीक है ना। सर किस किस मैटर में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? मैंने कहा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल फॉर योर बॉडी। मैंने कहा ओके सर, मुझे कोई मारेगा मैं बचा लूंगा अपने आप को। ना, बॉडी ऑफ दी अदर्स, दूसरे को भी बचा सकता हूं। हाँ, दूसरा सर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के लिए भी है। हाँ, प्रॉपर्टी सर कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल? तो मैंने कहा बोथ प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल एज दी इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। तो अब हम ये जो सेक्शंस है, नंबर ऑफ सेक्शंस, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे।
3 कैटेगरी माने, हाँ हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्कीम ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सो दिस ग्रुप ऑफ सेक्शंस लाइक 10 सेक्शंस है ना 34 to 44, हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनकी 3 कैटेगरी बनाएंगे। नंबर 1 फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नंबर 1 कॉमन सेक्शंस। पहले हमने क्या बताया, कॉमन सेक्शन। कॉमन सेक्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसके लिए है, बॉडी और प्रॉपर्टी बोथ। तो कॉमन सेक्शन वो सेक्शन है जो बॉडी के लिए भी है एज वेल एज प्रॉपर्टी के लिए भी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और कौन से सेक्शन है, सेक्शंस रिलेटेड टू बॉडी। अच्छा, बॉडी वाले सेक्शन अलग है, हाँ वो भी अलग है। और क्या है, सेक्शंस, मेरी कोशिश आज ये है कि नंबर ऑफ सेक्शन आज के बाद आप कभी ना भूलो, इस तरीके से बताया जाए कि नंबर ऑफ सेक्शन आपके दिमाग में हमेशा बना रहे, ठीक है ना। तो सेक्शंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, तो 3 कैटेगरी हो गई। तो नंबर ऑफ सेक्शन, कॉमन सेक्शन क्या है, कॉमन सेक्शन वो सेक्शन है विच इज रिलेटेड टू द बोथ बॉडी एज वेल एज प्रॉपर्टी, दोनों की बात करते हैं। तो पहले इधर देखो, आप सेक्शन में आ जाओ, कॉमन सेक्शंस कौन कौन से हैं, इधर देखो। कॉमन सेक्शन जो है 34, 35, 36, 37, यानी दीज आर ऑल द कॉमन सेक्शन। 37 के बाद अगला नंबर किसका है, 38, 39 एंड 40। देयर इज मियरली 3 सेक्शंस। ये क्या है, सेक्शंस रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है ना। 41, 42 और 43 ये किससे रिलेटेड है, सेक्शंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। और 44 भी कॉमन सेक्शन है, ये इनोसेंट को भी हार्म करने की बात करता है, यानी कि अगर दिक्कत है, अगर मॉब आपके ऊपर अटैक कर रही, गोली चलाओ, इनोसेंट की लगती, लगने दो, कोई चिंता नहीं है, चाहे बॉडी का मामला हो चाहे प्रॉपर्टी का। तो 34, 35, 37 और एक जो लास्ट का बचा सेक्शन था 44, वो यहीं रख दो, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं कॉमन सेक्शन कौन से हैं, 34, 35, 36, 37 और एक सेक्शन लास्ट वाला कौन सा है, 44, ठीक है ना। अब 30 इसको भी भूल ही जाओ ताकि याद रखना है ना। 37 के बाद अगला नंबर किसका है, 38 का। 38 किस रिलेटेड है, बॉडी से। आप अपनी बॉडी को बचाने के लिए किसी की जान भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटेंड टू द डेथ। 39 जान मत लो, दूसरा कुछ भी काम कर दो, अदर देन डेथ का आपके पास राइट है। और 40 माने सीसी, कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो 34, 35, 36, 37 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब, बोथ प्रॉपर्टी एंड बॉडी, दोनों के लिए। बॉडी के लिए, केवल बॉडी के लिए आपके पास 38 कहता है किसी की डेथ कॉज करने का राइट है, बॉडी पे जब दिक्कत आए। 39 बॉडी पे दिक्कत, डेथ मत कॉज करो, कुछ और कॉज कर दो। 39 और 40 कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा और कब आपका खत्म होगा, बॉडी के रिलेटेड। 40 के बाद क्या बचा, 41 थर्ड कैटेगरी हो गई। 41 माने सेम चीज, बॉडी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए किसी की जान भी ले लो। 42 अदर देन डेथ और 43 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर द प्रॉपर्टी, कब शुरू होगा कब खत्म होगा। एक सेक्शन बचा ना, कौन सा, 44, उठा के यहां रख दो। तो हमने इसको अगर समझे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां से कहां तक है, 34 to 44। हमने 3 कैटेगरी बनाई, कॉमन सेक्शन, सेक्शंस रिलेटेड टू द बॉडी एंड सेक्शंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। 34, 35, 36, 37 और 44 भी है, 38, 39, 40 सीक्वेंस है। इधर देखो सीक्वेंस है, 34, 36, 37 कॉमन सेक्शन, 38, 39, 40 बॉडी के लिए, 41, 42, 43 प्रॉपर्टी के लिए और 44 भी कॉमन सेक्शन यही है। तो अब हम ये तो समझ गए कि फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हमने इन सेक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, कॉमन सेक्शन और सेक्शंस रिलेटेड टू द बॉडी, कॉमन सेक्शन, सेक्शंस रिलेटेड टू द बॉडी, ठीक है ना। इतनी बात हमने देखी कि क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब आता है नंबर सेक्शन 34 का, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर आता है सेक्शन 34 का। क्या कहता है 34, बेयर एक्ट खोलोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा 34 क्या कहता है। 34 आपको ये कहता है 2 बातें जो तुमने पढ़ा, ये सेक्शन सिर्फ डिक्लेरेटरी सेक्शन है,
सिर्फ डिक्लेरेटरी, कोई अरेंजमेंट नहीं करता है। मतलब सेक्शन 34 ही वो सेक्शन है जो तुम्हें कहता है कि यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अच्छा, सो कोई पनिशमेंट नहीं, कुछ नहीं, देयर इज मियरली डिक्लेरेशन। क्या डिक्लेरेशन है सर? डिक्लेरेशन बस इतनी है बच्चे 34 में, नथिंग इज एन ऑफेंस, ये रहा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। बस एक लाइन का सेक्शन, कोई बात ऑफेंस नहीं है अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में कर रहे हो। दैट्स व्हाई देयर इज ओनली वन सेक्शन, इट इज अ डिक्लेरेटरी सेक्शन। लिख लो ब्रैकेट में, इट इज अ डिक्लेरेटरी सेक्शन, ठीक है ना। और बिल्कुल डिक्लेरेटरी सेक्शन है, सब्सटेंटिव राइट है आपके पास, ठीक है ना। कुछ नहीं दे रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है कि यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 34 हो गया, क्लियर। कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तुम कुछ भी कर दो इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं 35 की। यहां से एक क्वेश्चन प्री में बनना ही बनना है, आज के बाद भूलोगे नहीं, बस थोड़ा सा फोकस हमें दे दो। 35 क्या कह रहा है, इधर देखो, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर बॉडी, ये बॉडी रही, एंड प्रॉपर्टी। चलो जरा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्शन 34 हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 35। अब मेरी तरफ देखो, सेक्शन 35 क्या कह रहा है, इधर देखो सर। 35 में दो क्लॉज हैं, सुनते जाना। इट वॉज द सेक्शन 97 ऑफ द आईपीसी। 35 में दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज क्या कह रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, यही वो सेक्शन बताता है, बहुत ध्यान से देखना, 1 मिनट में सेक्शन खत्म कर दूंगा और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यही वो सेक्शन है जो बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, किसकी बॉडी? बॉडी ऑफ योर ओन और बॉडी ऑफ द अदर्स। कौन सा ऑफेंस बच्चे? जितने भी ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी हैं, चाहे आपको कोई थप्पड़ मारे, गिरा के मारे, कुछ भी करे, यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपने लिए भी और किसी और के लिए। यानी हर तरह के ऑफेंस में, आपको थप्पड़ मारे, मर्डर करे, कल पे कुछ भी करे, यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बॉडी के लिए भी और प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी में क्या है सर, कौन सी प्रॉपर्टी है? बोथ प्रॉपर्टी। बोथ का मतलब मूवेबल, इमूवेबल, बोथ। और क्या सर? और दो बातें, बॉडी ऑफ योर, प्रॉपर्टी ऑफ योर ओन, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी ऑफ दी अदर्स। लेकिन अब यही खेल हो गया। अब मेरी तरफ देखना, थोड़ा फोकस कर देना। मैंने कहा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर द बॉडी एज वेल एज दी प्रॉपर्टी। आपने कहा ओके सर। बॉडी में कौन से ऑफेंस? हर एक ऑफेंस। लेकिन प्रॉपर्टी में ये है लिमिटेड ऑफेंस। बस इसको ये याद रख लेना, RTMC, मतलब TMC एक पार्टी है बंगाल की, ठीक है ना, और R मींस रॉबरी। तो आप बस इतना याद रखो अपने दिमाग में, याद रखने के लिए बता रहा हूं कि प्रॉपर्टी के हर ऑफेंस में प्राइवेट डिफेंस नहीं है, सिर्फ रॉबरी, थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, बस इतने ऑफेंसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। मतलब एक क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल फॉर द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ना सिर्फ RTMC, रॉबरी, थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। सिर्फ इतने ऑफेंसेस में। क्या याद रखना है? प्रॉपर्टी के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किन ऑफेंसेस में है? RTMC। अगर आपके पास, इफ यू हैव बेयर एक्ट, यू मस्ट रीड द बेयर एक्ट। अगर आप बेयर एक्ट है आपके पास, तो आप देखें कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कितने लिए? RTMC। चलो मैं दिखाई देता हूं, ओपन योर बेयर एक्ट, नहीं तो इधर देखो। हाँ, दिस इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, दिस इज द सेक्शन 35। मैंने क्या कहा था, सेक्शन 35 में कितने क्लॉज हैं? दो क्लॉज हैं, ये रहे आपके, देखो 35 में मैंने कहा था ना दो क्लॉज हैं। दिस इज द सेक्शन 35। क्या कह रहा है 35? मैंने कहा था ना दो क्लॉज हैं, A और B।
his own body or body of any other person against any offense affecting the human body। ये देखो चार्ट मेरा, मैंने क्या कहा था, बॉडी ऑन और अदर्स, किसी भी ऑफेंस के लिए, ठीक है। फिर आ जाओ सेकंड क्लॉज पे, प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल बोथ। देखो मैंने क्या लिख दिया था, बोथ प्रॉपर्टी मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ। आगे मैंने क्या लिखा, हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, मैंने इसीलिए चार्ट में बना दिया ऑन और अदर। अब आगे आ जाओ, इधर देखो, विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। आपको याद रहे इसलिए मैंने कर दिया RTMC। 35 भी खत्म। तो 35 में क्या बताया गया, सेक्शन 35 आपको दो बातें बताता है, यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी, यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ योर ओन और अदर्स। कौन सी प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल इमूवेबल, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब डील करते हुए चल रहे हैं। और ऑफेंस कौन सा है, RTMC, R मींस रॉबरी, थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड बस ये ऑफेंस होंगे तभी राइट है। अगर सोचो कि जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मिल जाए तो नहीं मिलेगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मिल जाए तो नहीं मिलेगा, सिर्फ RTMC, दैट इज ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन, 35 हो गया। 36 क्या कहता है, सेक्शन 36 कहता है, इधर बात बताओ, आप एक बंदे, आप अपने घर में चढ़ रहे हैं और मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, लेकिन आप चाबी खो गई तो आप सीढ़ी फांद के या दीवार फांद के चढ़ रहे हैं, आपका नौकर है, उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में काम कर रहा है, कोई ऑफेंस किया उसने नहीं किया, लेकिन आप तो इनोसेंट हैं, आप अपनी जान देने के लिए पैदा हुए हैं क्या, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके एक्ट के अगेंस्ट कहां है, सेक्शन 36 में। एक छोटा बच्चा है 3 ईयर का, वो बंदूक लेके आया आपको मारने के लिए, वो तो खिलौना समझ के मार रहा है, वो आपको मार देगा, कोई ऑफेंस हुआ नहीं, लेकिन आप क्या मरने के लिए पैदा हुए ना, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है 36 में, ठीक है ना। एक अनसाउंड माइंड पर्सन है, पागल आपको मार देगा, पागल को कोई पनिशमेंट होगा नहीं होगा, तो आप कैसे बचेंगे, आपके पास राइट है प्यारे बच्चे, आपके पास राइट है सेक्शन 36 में, ठीक है। एक बंदा मैडनेस में आपको किल कर रहा है, आपके पास क्या राइट है, सेक्शन 36 में। यानी कि ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, यानी कि अगर कोई बाय रीजन ऑफ यूथ, इमेच्योरिटी में, कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पर्सन, कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन या मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कोई बंदा किसी के ऊपर अटैक कर रहा है तो वो तो इम्यून है इसी चैप्टर से, लेकिन आपके पास उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है सेक्शन 936 में। यानी कि यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ एक्टिंग अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आल्सो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी पागल आपको मारे, इम्यून है इसी चैप्टर में, लेकिन आप पागल के खिलाफ मरने के लिए नहीं पैदा हुए, यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट अनसाउंड माइंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 36। क्लियर। तो सेक्शन 36 ऐसे एक्ट्स के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस देता है, विच इज नॉट एन ऑफेंस एक्ट। बच्चे का काम एक्ट ही हुआ ना, 36 हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 37। सारा काम रोक के मेरे ऊपर फोकस कर दो। एक क्वेश्चन बार बार आता है, विच सेक्शन इज नोन एज लक्ष्मण रेखा ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अर्लियर इट वाज द सेक्शन 99, अब वो सेक्शन बन गया है सेक्शन 37। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 एक चार्ट बनाऊंगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दिस इज सेक्शन 37। मतलब सर क्या है, मतलब तुम कुछ भी कर लो, आपकी पॉकेट में किसी ने हाथ डाला, क्या उसकी गर्दन काट लोगे, नहीं काटोगे। यानी कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है बट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। वही रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 37 में दी गई है, ठीक है ना। दिस इज अर्लियर इट वाज सेक्शन 99 ऑफ द आईपीसी। तो सेक्शन 37 प्रोवाइड्स द डिफेंस, प्रोवाइड्स दी लिमिटेशंस। इसीलिए जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सेक्शन 99 को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का लिमिटेशन लक्ष्मण रेखा बोला गया। तो अब लक्ष्मण रेखा कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 37। इधर देखो, सेक्शन 37 याद रखना है तो 4 पॉइंट्स याद रखो। कितने पॉइंट्स, मैं आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, मेरी कोशिश ये है कि आपको सेक्शन याद रखे। तो पहली बात, आपको 4 बातें याद रखनी है, इसी चार्ट में खत्म कर दूंगा पूरा 37, और यही मेंस के लिए भी याद रखना। पहली बात तो ये है, यू डोंट हैव एनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट आपको थप्पड़ मारता है, आपको खा लेना है, आपको रिवोल्ट नहीं करना है, बिकॉज यू डोंट हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट।
सर एक बात बताओ, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है ना? सर चाहे मेरी जान ले ले। मैंने कहा ना 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 ना, तब है। तो सिर्फ दो कंडीशन में आपके पास प्राइवेट डिफेंस है, जब वो आपको डेथ कॉज करने वाला हो तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास रीजनेबल एप्रेंशन और ग्रीवियस हर्ट का। चलो कोई नहीं, ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन हो गया। तो पहली बात आपने बताई सर हमें कि वी डोंट हैव एनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। मैंने कहा एग्जैक्टली। दूसरी बात मैंने बताई, यू डोंट हैव एनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट a person who is acting under the direction of public servant। तो जो बंदा पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में काम कर रहा है, सेम पावर वो भी एक्सरसाइज करता है, आप उसके खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, यू कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ए पर्सन एक्टिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सर चाहे हमारी जान ले ले तब भी नहीं ले सकते। मैंने कहा सेम पावर एंजॉय करता है, इसका मतलब अगर वो डेथ कॉज करने वाला है, इसका ये भी एक्सेप्शन हो गया, ठीक है ना? डेथ कॉज करे या ग्रीवियस हर्ट करे तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। सेकंड पार्ट मैंने कहा पूरा सेक्शन खोखला कर दूंगा बस इसी चार्ट में से। थर्ड पॉइंट पे आओ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इधर सुनो। शुरुआत में मैंने एक आपको लाइन बोली थी, इट इज राइट फॉर डिफेंस नॉट फॉर द एग्रेशन। मैंने क्यों बोली थी कि इसको दिमाग में रखना और हर बात में रखना। मैंने बोला इट इज अ प्रिवेंटिव राइट नॉट अ प्यूनिटिव राइट। मैंने क्या बोला था, इट इज अ प्रिवेंटिव राइट नॉट अ प्यूनिटिव राइट। क्यों बोला था मैंने, क्योंकि अभी काम आएगा। सुनो ध्यान से, आपके घर एक चोर आया, आपने उसको पकड़ लिया, कमरे में बंद कर दिए। अब बंद कर दिया तो अब आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, अब आप अथॉरिटी को बुलाएंगे, ठीक है ना? अब आप किसको बुलाएंगे, अथॉरिटी को बुलाएंगे, आए और आपकी हेल्प करे, ठीक है ना? आप उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते हैं। यानी व्हेन यू हैव टाइम टू रिकोर्स, टाइम टू रिकोर्स हेल्प फ्रॉम, व्हेन यू हैव टाइम टू रिकोर्स हेल्प और प्रोटेक्शन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज, जब आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज से हेल्प लेने का टाइम है तब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज करेंगे, ठीक है ना? जब पुलिस आके आपको बचा सकती तो आप नेता बन के आगे आगे नहीं चलेंगे। थर्ड पॉइंट। और फोर्थ क्या बचा, जितनी जरूरत उतनी हार्म। आपका कोई फोन चोरी कर रहा है, आप उसकी गर्दन नहीं काटेंगे। नो मोर हार्म, नो मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी। जितनी जरूरत उतना हम। सेक्शन 37 खत्म। दीज आर ऑल द लिमिटेशंस, दिस इज द लक्ष्मण रेखा। कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स। यू नंबर 1, यू कैन नॉट एक्सरसाइज ऑफ योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। ओके सर। You cannot exercise of your right of private defense against a person who is acting on the direction of public servant। आपने कहा ओके सर। नंबर 3, you cannot exercise of your right of private defense when you have time to recoup the help from the authority। आपने कहा ओके सर। मैंने कहा जितनी जरूरत सिर्फ आप उतना हार्म पहुंचाएंगे, नो मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी, उसके अलावा नहीं पहुंचाएंगे। आप यहां भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते। क्लियर और नॉट सर? मैंने कहा यस प्लीज, कुछ जरा केस बता दो सर। मैंने कहा अभी आ जाओ। इसी को समझने के लिए ये केस बार बार पूछा जाता है, कंवर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना? कंवर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है सर ये केस, अभी तुम खुद जवाब दोगे। कंवर सिंह क्या था, ये एक बहुत पहले एक रेडिंग पार्टी, एमसीडी देखते हो ना कभी कभी रेड करती है आके, तो एमसीडी की एक रेडिंग पार्टी आई और उसने जो स्ट्रे कैटल से जो आवारा जानवर थे उनको सीज करने लगी। वो कैटल एक बंदे के थे। जब उनको लेके जाने लगी तो उस बंदे ने रजिस्ट किया, उन्होंने मारपीट कर दी। किसके साथ, जो रेडिंग पार्टी एमसीडी की आई थी, ठीक है ना? जब उसने मारपीट कर दी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। तो अब बताओ वेदर ही इज लायबल और नॉट। उसने कहा साहब कैटल्स आर माई प्रॉपर्टी एंड आई हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी। तो सर ये ले जा रहे थे, मैंने मारपीट कर दी, मैंने क्या गलत किया? मैंने कहा यू फॉरगेट अबाउट द एक्सेप्शन। नंबर 1, दे आर द पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो वो बंदे होंगे जो उसके डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, और ही वाज वेरी मच एक्वेंटेड विद दिस फैक्ट। नॉलेज होना भी जरूरी है, ठीक है ना? तो बोले भैया यू डोंट हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, और कंवर सिंह को सजा हो गई, ही वाज कन्विक्टेड। सो दिस इज द केस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है ना? आप हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये बात हो गई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे सर?
और केस बता दो, मैंने कहा और केस ले लो। एक केस है गुरदत्तमल, सुपर इंपॉर्टेंट केस है, गुरदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। गुरदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सर इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ, इधर देखो, देयर वाज अ लैंड डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज, झगड़ा था जमीन का, बहुत पुराना सिविल लिटिगेशन था। एक पार्टी डिसीज्ड हैड एस्टैब्लिश्ड हिज राइट ऑफ टाइटल, एक जो डिसीज जो मर गया बंदा, उसने अपना टाइटल एस्टैब्लिश कर दिया कि जमीन उसकी हो गई, सिविल मुकदमा लड़ रहे थे, उसके फेवर में वर्डिक्ट आ गया। अब वो फिजिकल पोजीशन लेने के लिए पहुंचा, ठीक है ना, वो बंदा पहुंचा कुछ बंदों के साथ फसल काटने, हार्वेस्ट करने पहुंचा। अब जब वो हार्वेस्ट करने पहुंचा तो बच्चे सामने वाली पार्टी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया, इसी चक्कर में एक बंदे की डेथ हो गई। अब आप बताओ, उसने कहा मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। उस टाइम फसल हार्वेस्ट करने गया था ना, फिर हार्वेस्ट करके घर ले जाता, बेचते टाइम, यानी कि किसी भी टाइम अथॉरिटी की हेल्प ले लेते तो काम रुक जाता, तो ले जाते, हो जाता कि नहीं हो जाता। अब प्यारे बच्चे, उसने कहा मेरे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, मेरी प्रॉपर्टी है, अब इधर आ जाओ, टाइम टू रिक्वेस्ट द हेल्प फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। अरे भाई गुरदत्तमल, तुम्हारे पास अथॉरिटी से हेल्प लेने का पूरा मौका था, तुमने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया। तुमने क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब है जब इमिनेंट डेंजर हो, कोई डेंजर था ही नहीं, ठीक है ना। तो अब अथॉरिटी की जब तुम हेल्प ले सकते, तुमने काम कैसे किया, यू डोंट हैव आल्सो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो नेक्स्ट केस इज बेसिकली गुरदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट केस इज बेसिकली गुरदत्तमल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कितना है, जितना जरूरी उतना, बस अथॉरिटी से हेल्प ले लो। सर एक केस और बता दो, मैंने कहा सुपर इंपॉर्टेंट केस, इसको भी देख लो, देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बिना इसके देवनारायण, ये सारे केस नोट करते जाना, यही एग्जाम में आएंगे, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। व्हाट इज द देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस क्या है सर, देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो केस है, ये भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। इस केस में क्या हुआ, दो पार्टीज में झगड़ा हुआ, मैं फैक्ट पे नहीं जा रहा। एक पार्टी ने दूसरे के ऊपर ब्लो, लाठी का एक टारगेटेड ब्लो मारा, देयर वाज अ ब्लो ऑफ द लाठी, ठीक है ना, ए ब्लो विद द फुल फ्लो ऑन द वल्नरेबल पार्ट ऑफ द बॉडी। सर में फुल लाठी से अटैक किया, बंदा किसी तरह बचा और वहां पर एक स्पीयर रखा था, स्पीयर उठाया और थ्रस्ट दे दिया जो उसको लाठी मार रहा था। अब मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ तो बोला कि साहब इन्होंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया, इनसे लाठी से मार हो रही थी और इन्होंने तो स्पीयर यूज कर लिया, विच इज वेरी डेडली वेपन। कोर्ट ने, इसीलिए मैंने वो, रिमेंबर माय वर्ड्स, ए ब्लो विथ फुल फ्लो ऑन द वल्नरेबल पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हेड। अब बच्चे कोई पूरी ताकत से आपके सर में लाठी मारेगा, आप लाठी वर्सेस स्पीयर मत देखो, लाठी कैसे मारी जा रही है वो देखो, ठीक है ना। तो बोला इसमें बोला गया इनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। बोला क्यों नहीं है, बोला नो मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी, इन्होंने ज्यादा हार्म पहुंचा दिया, उसकी जान ही ले ली इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ ए ब्लो with lathi is aimed at a vulnerable part like head, it cannot be laid down a sound proposition of the law that in such case victim is not justified using his spear। मतलब ये नहीं कह सकते तुम की लाठी यूज किया इसलिए स्पीयर नहीं यूज कर सकता, क्योंकि फुल फ्लो, ए बिग ब्लो ऑन द हेड, अब तो लाठी करना पड़ेगा ना। कोर्ट ने यहां भी बरी कर दिया, लेकिन आप याद रखें नो मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी। तो हमने क्या देखा, वी डिस्कस्ड ऑल द कॉमन सेक्शन। बेसिकली हमने क्या देखा, सेक्शन, हमने कॉमन सेक्शंस क्या थे, कॉमन सेक्शंस ये रहे, इधर देखो कॉमन सेक्शंस हमने सारे डिस्कस कर लिए। 34 नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। 36 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट। 37 लिमिटेशन। और 44 तो बताया इनोसेंट को हार्म कर सकता है। नंबर किसका है, सेक्शंस रिलेटेड टू द बॉडी। 38 ये कहता है आपको कि कब आप बॉडी के लिए जो है, कब आप बॉडी के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। 38 क्या कहता है, कब आप बॉडी के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं, बॉडी पे एक्ट करने के लिए। तो इधर देखो कितने ग्राउंड है, यहां पर 8 ग्राउंड है, 1 2 3 4 5 6। आप इन तरीके 6 ग्राउंड को याद रखें, ठीक है ना। एक 7th भी है, एसिड अटैक, ये 7th ग्राउंड याद रखें कि 7 ग्राउंड है। जब आप किसी की जान भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास रीजनेबल एप्रहेंशन होना चाहिए। नंबर 1 फर्स्ट है, इधर देखो,
जब आपको रीजनेबल अप्रहेंशन हो जाए कि आपकी डेथ हो जाएगी, अप्रहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज। जरूरी नहीं कि आप मर जाओगे तो क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करोगे। यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मेनली ऑन द रीजनेबल अप्रहेंशन। आप खुद ही डर रहे हो कि कोई मार देगा तो नहीं, अप्रहेंशन मस्ट बी रीजनेबल। तो व्हेन देयर इज अ रीजनेबल कॉज ऑफ अप्रहेंशन ऑफ डेथ, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, किसी की जान ले लो। ग्रीवियस हर्ट, कॉज ऑफ ग्रीवियस हर्ट, यहां भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। रेप, यहां भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की डेथ ही कर दो, जान ही ले लो, ठीक है ना। समवन इज इंटेंशन to gratify a natural lust, you have right of private defense. Kidnapping and abduction, you have right of private defense, ठीक है ना। और assault with intention to wrongful confine, ऐसे confine करना कि अथॉरिटी की हेल्प ही ना ले पाओ, आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। और एसिड अटैक, ठीक है ना, एसिड एडमिनिस्टर एसिड, यानी देयर इज अ 7 ग्राउंड, यानी कि व्हेन देयर इज एप्रहेंशन ऑफ डेथ, आप किसी की जान ले लो कोई दिक्कत नहीं है। एप्रहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, किसी की जान ले लो कोई दिक्कत नहीं है। रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, एबडक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एसिड अटैक, ये सारे के सारे ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें आप अगर किसी की जान भी ले लोगे तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक केस देख लो सर, इसमें भी जरा केस बता दो। मैंने कहा सुन लो केस, 38 में एक केस है विश्वनाथ वर्सेस स्टेट। जो केस बता रहा हूं दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम ऑफ द केस इज बेसिकली विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ, इस केस में यह हुआ कि एक्यूज्ड ब्रदर वाज स्टेइंग विद हर फादर, एक्यूज सिस्टर वाज स्टेइंग विद हर फादर। एक लड़की थी, अपने फादर के साथ रहती थी, उसकी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती थी। एक दिन हस्बैंड उसको लेने आया अपने गांव वालों के साथ। हस्बैंड जब उसको लेके जा रहा, पहले उसने उसको पीटा और उसको वाइफ उसकी सिस्टर को लेके जा रहा ड्रैग करते हुए, उसने दरवाजा यूं पकड़ा, फिर भी वो घसीट रहा है, तभी उसका भाई आ गया। व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज द एबडक्शन। अगर छोटी है तो दिस इज एबडक्शन ना, किसी को फोर्सफुल लेके जाना, ठीक है ना। भाई आ गया, जब भाई ने देखा उसने चाकू उठाई और स्टैब्ड एट वंस, एक बार सीने में सीधा स्टैब कर दिया। बताओ, डेथ हो गई किसकी, जीजा जी की डेथ कर दी उसने। उसकी बहन को लेके जा रहे थे उनके हस्बैंड साहब, उसने बोला ये सीधा पार होके सीने में लगी और उसकी डेथ हो गई। अब बताओ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं है डेथ कॉज करने तक। आप देखो किडनैपिंग और एबडक्शन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं है। विश्वनाथ बच गया, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड। रेप, रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ रेप, कोई रेप कर रहा है, पूरा राइट है, किस बात का, पूरा राइट है इस बात का कि आपको जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। एक केस इसमें भी सुन लो, यशवंत राव। जो केस मैं बता रहा हूं यही एग्जाम में आएंगे और कोई नहीं आएगा। वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। क्या था इस केस में, यशवंत राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में एक बच्ची अपने फादर के साथ सो रही थी। रात में लगा कि कोई उसको लेकर चला गया। जब रात में ये लगा कोई उसको लेकर चला गया तो फादर गए, देखा माइनर थी, अब कंसेंट का तो सवाल ही नहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स में। फादर ने देखा समवन वाज कमिटिंग रेप, फादर ने उसको, उस बंदे को वहीं मार दिया। रेप में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ, डेथ भी कॉज कर सकते हो। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपकी अपनी बॉडी के लिए, बॉडी ऑफ अदर के लिए भी है। तो बच्ची का रेप हो रहा था, फादर ने उसको मार दिया, प्राइवेट डिफेंस हो गया, फादर को कोई ऑफेंस नहीं, एक्विटेड, ठीक है ना। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर योर ओन बॉडी और बॉडी ऑफ दी अदर, फादर को कुछ नहीं हुआ, बॉडी ऑफ अदर, बेटी की बॉडी में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है ना, यहां भी कोई ऑफेंस नहीं। तो इस तरीके से हमने ये देखा। और सेक्शन 39 क्या कहता है, भैया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो है, लेकिन डेथ के अलावा अदर हार्म करने के लिए। अदर हार्म किसमें, ऊपर के जो ऑफेंस है उसी में डेथ कॉज कर सकते हो, बाकी बचे जितने ऑफेंस हैं उसमें सब में आपको डेथ नहीं करनी, दूसरा कुछ करना है, ठीक है ना। और सेक्शन 40 क्या बताता है, सीसी, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर द बॉडी, यानी बॉडी के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, सीसी। तो जब रीजनेबल एप्रहेंशन आ जाए प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट, रीजनेबल एप्रहेंशन खत्म, प्राइवेट डिफेंस खत्म, ठीक है ना। एक चार्ट बना रहा हूं और उससे हमेशा के लिए याद रखने के लिए हो जाएगा। इधर देखो, बॉडी से रिलेटेड सेक्शन, कैसे सेक्शन याद रखने हैं, एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शन। इस चार्ट को याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। बॉडी से रिलेटेड सेक्शन कौन कौन से हैं, 38, 39
और 40, इसके पहले तो हम पढ़ ही चुके हैं 34, 35, 36, 37, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 40 के बाद अगला नंबर किसका है, 41 का। तो 41 यहां लिख दो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 42 आप यहां लिख दो और 43 आप यहां लिख दो। बचा 44, वो कॉमन सेक्शन है, इनोसेंट को भी हम पहुंचा दो, ठीक है ना। 6 सेक्शन हो गए। सर याद कैसे करें, 38 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ। आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में डेथ करने का भी राइट करते हो, 7 ग्राउंड्स अभी आपने पढ़ा। 39 क्या कहता है, आपके पास प्राइवेट डिफेंस है बट अदर देन कॉजिंग डेथ। आप डेथ नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना, अदर देन डेथ। अच्छा सर ये भी तैयार हो गया। 40 क्या कहता है, सीसी माने कॉमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा। 38, 39, 40। अब आ जाओ प्रॉपर्टी के लिए। जो बात 40 तक है वही बात 41 कहती, प्रॉपर्टी के लिए कब आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो। 42 कहता है कि कब आप अदर देन डेथ कॉज कर सकते हो, और 43 कहता है कि कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी शुरू होगा, कब खत्म होगा। तो बॉडी, प्रॉपर्टी 38, 39, 40। 38 में डेथ कॉज कर सकते हो, 39 में अदर देन डेथ कर सकते हो, और 40 कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। बात आ गई प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी के लिए कब आप डेथ कॉज कर सकते हो, कब अदर देन डेथ कॉज कर सकते हो, सेम चीज, और कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होगा और कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म होगा। तो ये रहा आपका 43। बचा एक 44, जरा वो देखते हैं। वो आपको कहता है कि कब जो है आप एक तरीके से इनोसेंट को भी डेथ कॉज कर सकते हो। 44 रहा, ये रहा 44। 44 क्या है सर, जरा इसको भी बता दो। 44 कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है आपका एक तरीके से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस फॉर कॉजिंग डेथ। देखो इधर क्या कह रहा है सर, 44 ये कह रहा है, 1 मिनट में सारे सेक्शन क्लियर होंगे। 44 ये कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट। आपके ऊपर मॉब ने अटैक किया, अब आप डेडली असॉल्ट कर दो, चाहे भले इससे इनोसेंट को हार्म हो जाए। भीड़ में बच्चा भी है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बच्चे को गोली लग गई, आपने कुछ नहीं किया, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड कर रहा है आप इनोसेंट को भी हार्म करने तक। और ये चार्ट जरूर याद रखो, बॉडी और प्रॉपर्टी, ठीक है ना। 39, 38, 39, 40, और प्रॉपर्टी के सेक्शन कौन से हैं, 40, 41 और 43। बचा एक 44। तो बस ऐसे याद रखो, इसमें भी डेथ कॉज कर सकते हो, सेम चीज 40 के लिए। इसमें भी अदर देन डेथ कॉज कर सकते हो, सेम चीज 41 के लिए। और 40 और 43 सीसी, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा। दिस इज ऑल द सेक्शंस व्हिच इज रिलेटेड टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। चलो एक बार जरा बेयर एक्ट देखो, और इसके बाद जो है अब अपने पास टाइम कम है, अदरवाइज बहुत सारे सेक्शंस बताने थे हमें, ठीक है ना, और इनको देखते हैं हम। इधर लुक एट द बोर्ड, हाँ। 34, 35, 36, 37 कॉमन सेक्शन, 38, 39 and 40 and 40, 30, 40, 41, 42, 40, 38, 39, 40 प्रॉपर्टी बॉडी, एंड 41, 42, 43 सेम बात। 41 क्या कहते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी एक्सटेंड, सेम बात जो 38 कह रहा है, 42, 43। तो हमने इस तरीके से कोशिश तो ये करी कि कम टाइम में आपको ये समझाया जाए कि व्हाट इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और हाउ इट इज फंक्शनिंग। तो कोई ज्यादा चेंजमेंट नहीं है प्यारे बच्चे, कोई बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं है, और हमें बस ये देखना था कि नंबर ऑफ सेक्शंस याद करने हैं और केसेस याद करने हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ सेक्शंस याद करने हैं, केसेस याद करने, तो जो चार्ट मैंने बताया आपको उसी को आपको याद रखना है। 38 में आप डेथ कॉज कर दो बॉडी के लिए, 7 ग्राउंड्स हैं। सेम बात 40 प्रॉपर्टी के लिए है, इसको डिटेल में आप देख लेना, आप डेथ कॉज कर सकते। 39 क्या कहता है, अदर देन डेथ, डेथ के अलावा कुछ भी करो,
किन ऑफेंसेस में? इन 7 ऑफेंसेस को छोड़ के। सेम बात 40 और 40, 41, 43 सेम चीज प्रॉपर्टी के लिए है। डेथ कॉज कर दो, अदर देन डेथ कॉज कर दो। और 43 क्या कहता है? 43 आपका कहता है कि कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा। तो दिस इज बेसिकली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि ऐसे कुछ बताया जाए कि नंबर ऑफ केसेस, अभी बहुत सारे केसेस बाकी हैं। जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, देयर इज अ सेवन, राम स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लेकिन इन केसेस को आप जरूर देख लेना, या कभी किसी क्लास में मैं देख लूंगा। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ जुडिशरी एंड एपीयू? देयर इज अ वेरी लिमिटेड और फ्यू सेक्शंस और केसेस जो बार बार पूछेंगे। उन्हें लगता है बच्चों को याद नहीं होता है। मैंने तो करा दिए 10 के 10 सेक्शंस यार, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सेक्शन पूछेगा या तो केसेस पूछेगा। अभी बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं लिस्ट ऑफ केसेस अगर बताऊं आपको, तो उन लिस्ट ऑफ केसेस में आपको है अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अमजद, कौन कौन से केस याद रखने हैं आपको, उसके बाहर नहीं पूछेगा। अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। और इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है ना। कंवर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, मुंशी राम एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, किशन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जो सारे केसेस बता रहा हूं, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, है ना। यही आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कंवर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, गुरदत्त मल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अमजद खान वर्सेस स्टेट। ये सारे के सारे केसेस आपके टॉपिक में हैं। फिर किसी क्लास में, फिर किसी टॉपिक में हम इनको डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इनको जरूर पढ़ें और प्राइवेट डिफेंस इसी तरीके से याद करें। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.